ये कहाँ से आ रही थी साउंड? बार्किंग ऑफ डॉग। वो मैम यहीं से आ रही होगी, मेरा माइक ओपन है। ओके ओके। ओके बेटा, वी आर नो मैम, आप ना अटेंडेंस ले लेना सिर्फ। ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके मैम। ओके बेटा, वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, चैप्टर 7, that is structural organization in animals. Okay, what we are going to study in this chapter? So as we all know, rest of the 3 topics that are omitted from your syllabus, so only we are going to study the first topic, that is animal tissues. Okay students, so here I am going to tell you in detail about the animal tissues. So beta, what is given in the introduction? In the introduction it is given that we always come in contact with variety of animals, and all of these animals, it may be unicellular or it may be multicellular in nature. Okay, if the animal is unicellular, then we know that the body is made up of only a single cell, and this single cell is performing all the metabolic functions of that particular animal. And if the animal is advanced or complex or multicellular animal, then this means the animal body, it is made up of many cells, and all of these cells, they are performing their specific functions. So there may be division of labor among these. This means that these cells, they later form tissues, and these tissues, they later form organs, and organs, they later develop into organ systems. So in the case of a multicellular organism, different cells, they are responsible for performing different functions. So what are tissues actually? The students, tissues are group of cells, group of similar cells. Similar means they are similar in their structure and they are also performing similar functions. ठीक है बेटे, ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स के एग्रीगेट्स होते हैं जो सिर्फ स्ट्रक्चर में ही सिमिलर नहीं है, बल्कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं. So here I have written the definition of tissues, that tissues are group of similar cells along with their intercellular substances, and they are performing the similar functions. So these animal tissues, they are of different types. So here in the next slide, 4 types of tissues are visible to you. I have already discussed that these tissues, when they aggregate together, they form the organs. And these organs, when they work in a coordinated manner, they form the organ systems. And these organ system, they associate together, and coordinated manner, they later constitutes the body of an organism. So here in this slide, 4 type of animal tissues that are visible to you. The first type of animal tissues are known as the epithelial tissues. Okay, but simply we call these epithelial tissues as epithelium. So these are the first type of tissues, animal tissues. Second is connective tissues. ठीक है, as the name itself indicate, connective tissues है, इसका मतलब क्या करते होंगे बॉडी में, कनेक्ट करते हैं. ठीक है, कनेक्ट किसको करेंगे, तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, so that they can work in an associated manner, in a coordinated manner. All right बेटे, third type of tissues are known as the muscular tissues. देखो मस्कुलर टिश्यूज है, इसका मतलब मसल से रिलेशन रखते हैं, एंड मसल्स का यहाँ पे काम क्या है, मूवमेंट का है. तो मस्कुलर टिश्यूज जो है उनका भी मेन काम यहाँ पे मूवमेंट से रिलेटेड होगा. ओके बेटे, फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यूज आर नोन एज द न्यूरल टिश्यूज. ठीक है, न्यूरल टिश्यूज, तो न्यूरल टर्म कहाँ से आई है यहाँ पर, तो न्यूरल टर्म हमारे पास आई है न्यूरॉन से. दिस मीन्स दीज टिश्यूज आर रिलेटेड विद nerve fibers, and you know that nerve fibers are performing, or they have the function to perform or to send different type of messages from the body cells to the brain, so that the brain can take an appropriate decision for the functioning of a body organ. तो न्यूरल टिश्यूज का उनका मेन फंक्शन यहाँ पे मैसेजेस जो है उनको सेंड करने का है. ओके बेटे, तो हियर 4 type of tissues we have to memorize: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues, and the fourth one are the neural tissues. Okay beta, in the next slide I have shown you the classification of the animal tissues. So here such type of classification is not given in our NCERT book, but I have made this flow chart, and that is a simple one. See, animal tissues, they are of how many types? Number 1, epithelial tissue.
Number 2 muscular tissue, then connective tissues, and then nervous tissues. Okay, but I have written the function at the top of the box, that is epithelial tissue. This means they have performing the function of protection. They are covering something. ठीक है, अगर epithelial tissues हैं तो वो कवर कर रहे हैं. किसको कवर करेंगे? तो कहते हैं कि कवर करेंगे वो एक तो बॉडी सरफेस को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, हमारी बॉडी सरफेस से सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है ना, तो हमारी बॉडी जो है उसमें डायरेक्टली अनवांटेड सब्सटेंसेस एंटर ना कर जाएं, तो इसलिए वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको कवर करते हैं. दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ अवर वेरियस बॉडी डक्ट्स, बॉडी ग्लैंड्स एंड वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. ठीक है, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट टाइप के डक्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनकी लाइनिंग यानी उनकी आउटर सरफेस को फॉर्म करती है. ठीक है बेटे, अब देखिए नीचे मैंने उसके सब टाइप्स लिखे हुए हैं. तो एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं उनको हमने फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर नोन एज द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज. ठीक है, सभी को मैं डिटेल में लूंगी वन बाय वन. Then second type of epithelial tissues are known as the cuboidal tissues. As the name itself indicates, these cuboidal tissues have tube-like cells. Okay बेटे, columnar epithelial tissues. देखो नेम से ही पता लग रहा है कि सेल्स कैसे होंगे, column-like cells present होंगे. And fourth are the ciliated epithelial tissues. तो ciliated epithelial tissues जो हैं वो ciliated columnar epithelial tissues भी हो सकते हैं और ciliated cuboidal epithelial tissues भी हो सकते हैं. ठीक है बेटे, तो ciliated है इसका मतलब they have presence of cilia over their surface, and you know that cilia is related with the function of locomotion. तो इसका मतलब इस तरह के जो टिश्यूज हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो सब्सटेंसेस जो हैं उनको मूव करते हैं जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है. And last type of epithelial tissues are known as the glandular epithelial tissues. As the name itself indicates, this type of epithelial tissues are glands actually. और आपको मालूम है कि glands जो हैं वो certain substances जो हैं उनको क्या करते हैं, store करते हैं और later on उन substances को further क्या करते हैं, transport करते हैं उनके respective organs तक. तो epithelial tissues की 5 subcategories हैं: squamous epithelial, then cuboidal epithelial, then columnar epithelium, then ciliated columnar or cuboidal epithelium, and last one is glandular, cuboidal or columnar epithelium. All right, next is muscular tissues. So muscular tissues जो हैं, as I already told you that muscular tissues, they are performing variety of movements in your body as well as body organs. All right, so they are concerned with locomotion. So here we have how many types of muscular tissues? So we have 3 types of muscular tissues. First one is straighted muscular tissues. ठीक है, जिन्हें simply हम straighted muscles भी कहते हैं. Straighted muscles उन्हें क्यों कहते हैं? Because इस तरह के जो muscle fibers हैं उनकी surface पे क्या present है? Certain type of striations present है, designs present हैं. उनकी surface smooth नहीं है इसलिए हम इनको straighted कहते हैं. ओके बेटे, उसके बाद देखिए नॉन स्टेटेड मसल फाइबर्स कौन से होते हैं, जिनकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, जिसमें किसी तरह की कोई स्ट्रेशंस जो है प्रेजेंट नहीं है. तो दे आर आल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ मूवमेंट और लोकोमोशन. एंड थर्ड टाइप ऑफ स्टेट मसल फाइबर्स और मस्कुलर टिश्यू, दे आर नोन एज द कार्डियक मसल्स. As the name itself indicate, we have always used the term cardiac for heart. So here these type of muscles are only concerned with the movements that are occurring in our heart. They are present in our heart. तो हार्ट का जो कार्डियक मस्कुलेचर है वो इस तरह के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है. ओके बेटे, थर्ड कैटेगरी कौन सी थी एपिथेलियल टिश्यूज की? थर्ड कैटेगरी जो है टिश्यूज की, दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज. तो कनेक्टिव टिश्यूज के टॉप पे देखिए मैंने उसका फंक्शन लिखा हुआ है. उनका फंक्शन है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को बाइंड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना और डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है उनका ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, तो उसको भी हमने उसके कैसा फंक्शन वो बॉडी में परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हमने उन्हें डिवाइड किया है. तो कनेक्टिव टिश्यूज में हमने स्केलेटल रखी है, तो स्केलेटल में हमारे पास जो है बोन्स आ सकती हैं और कार्टिलेज आ सकती है. ठीक है बेटे, बोन्स और कार्टिलेज जो है वो बॉडी में प्रेजेंट हार्ड टिश्यूज होते हैं. तो बोन्स जो है उनके अंदर हार्डनेस जो है कार्टिलेज के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा रहती है. ऑलराइट, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज. तो सपोर्टिंग टिश्यूज जो है उसमें हमने
टू कैटेगरीज में रखा है, टेंडन्स है और लिगामेंट्स। ठीक है, हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंडन्स जो है वो कैसे टिश्यूज होते हैं। तो टेंडन्स जो है वो ऐसे टिश्यूज हैं जो हमारी मसल्स को हमारी बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो हमारी बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं वो लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है बेटे, फिर कहते हैं कि कई बार कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो फ्लूइड लाइक अपीयरेंस रखते हैं। तो फ्लूइड लाइक अपीयरेंस जो है उसके अंदर भी हमारे पास टू टाइप्स के हैं। ठीक है, दे मे बी ब्लड और दे मे बी लिम्फ। आपको मालूम है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हमारा मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, बट इन द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, ब्लड के अलावा इन द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ योर बॉडी देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड दैट इज रनिंग in your body, and it is somewhat colorless in nature, and it is also responsible for the transport of certain enzymes and fat molecules, and this is known as lymph। ठीक है, छोटी क्लास से आपको बताते आ रहे हैं कि लिम्फ जो है उसका नेम क्यों पड़ा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है, fighting cells present in them which are known as lymphocytes, and because of the presence of lymphocytes this fluid is known as lymph, so it is also a type of a connective tissue। all right, एंड उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास स्पेशल टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसमें एरोलर टिश्यूज आ जाती हैं और एडिपोज टिश्यू आ जाते हैं। ठीक है बेटे, एरोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज को अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। देखो एडिपोज टिश्यू उनका नेम क्यों पड़ा है, because of the presence of special type of fat storing cells in them, and these fat storing cells are known as adipocytes। all right bete, then I am coming on the next category, and that is nervous tissue। so these nervous tissues, they are controlling specific functions in your body। ठीक है, those functions, those decisions that are taken by the brains, they are happening only because of the presence of these nerve fibers or nervous tissues, and they are also coordinating certain body functions। all right, so these are the four broad categories of the animal tissues: epithelial tissue, vascular tissues, connective tissues, and nervous tissues। epithelial tissues: squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, and glandular epithelium। muscular tissues: stated muscles, non-stated muscles, and cardiac muscles। connective tissues: we have skeletal, that is bone and cartilage supporting, then tendons and ligaments, fluid, then blood and lymph, then areolar connective tissues, and adipose connective tissues, and last one is nervous tissues। okay bete, now I am taking the first type of the animal tissues which are known as the epithelial tissues। I have already told you that sometimes we have used the term epithelium for the epithelial tissues। ठीक है बेटे, कई बार हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं एपिथेलियम। तो एपिथेलियल टिश्यूज का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि हमेशा इन टिश्यूज की फ्री सरफेस होती है, दे ऑलवेज हैव अ फ्री सरफेस। ओके बेटे, एंड दिस फ्री सरफेस दे ईदर फेसेस अ बॉडी फ्लूइड। कहते हैं कि ये इनकी फ्री सरफेस जो है या तो वो किसी बॉडी फ्लूइड जो है उसके आसपास लाइनिंग फॉर्म कर रही है, या फिर कहते हैं कि बॉडी जो है हमारी उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिपार्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे हमारी बॉडी जिस सरफेस से अलग होती है वही एक्चुअली वो कवरिंग सरफेस जो है हमारी बॉडी की, वही एक्चुअली क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। और कहता है कि सिर्फ हमारी बॉडी सरफेस पे ही एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर भी आप देखेंगे तो आपकी बॉडी में सो मेनी बॉडी फ्लूइड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कैविटीज, एंड द लाइनिंग ऑफ दीज कैविटीज इज कवर्ड बाय दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि इनका फंक्शन जो है वो क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करना है ईदर टू द बॉडी सरफेस और टू द बॉडी फ्लूइड्स। तो इसके अलावा कहते हैं कि इनका फंक्शन जो है वो ये है कि बॉडी के अंदर जो है ये प्रोटेक्शन का काम तो कर ही रहे हैं। ठीक है बेटे, अब अगर इसकी हम सेल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो कहते हैं कि इनके सेल्स जो हैं वो, क्योंकि प्रोटेक्शन का इनका फंक्शन है, तो सेल्स इनके कैसे हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स है। ठीक है, सेल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है और सेल्स जो है उनके अंदर बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन द cells, and later on these epithelial tissues, they are divided into two categories, that how many cellular layers are present in them। so here we have divided the epithelial tissues into two types, number one simple epithelial tissues and number two is compound epithelial tissues। ठीक है बेटे, diagram is visible to all of you।
फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनमें सेल्स की सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर्स होती हैं। और ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो जनरली क्या फॉर्म करती हैं, ये जनरली जो है लाइनिंग फॉर्म करते हैं, कवरिंग फॉर्म करते हैं। किसकी कवरिंग फॉर्म करते हैं? बॉडी कैविटीज की कवरिंग फॉर्म करते हैं, बॉडी डक्ट्स की कवरिंग फॉर्म करते हैं, एज वेल एज द वेरियस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। ठीक है, तो काफी सभी स्टूडेंट सोच होंगे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन से प्रेजेंट है बॉडी में। तो आपकी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में विंड पाइप जिसे आप फेरेंक्स कहते हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, बॉडी में फिलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट है। ऐसे सो मैनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। So all of these tube-like structures have a covering and that is made up of simple epithelial tissues. Okay बेटे, compound epithelial tissues देखो सेकंड पिक्चर में हमें नजर आ रही है। तो compound epithelial tissues जो है वो simple epithelial से थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सिर्फ सिंगल लेयर से नहीं बने होते, इसमें काफी सारी जो है मल्टी लेयर सेल्स की प्रेजेंट होती हैं। So these are the multi-layered epithelial tissues. And because so many cellular layers are present in the compound epithelial tissues, this means their function is differ from the simple epithelial tissues and their function is here protection. तो अगर हमने compound epithelial tissue का example देना है तो हमारे पास सीधे हमारे पास क्या आ जाती है, स्किन आ जाती है, जिसमें 7 layers जो हैं वो मल्टी लेयर्स जो हैं वो सेल्स की यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटे, both the picture is visible to you. First is of epithelium, simple epithelium, and second is of compound epithelium. So here so many cellular layers are present. This means compound epithelium are the multi-layered cells, and here only a single layer of cells are present. Nucleus is visible to all of you, and there is a membrane जिसपे कि ये cells की layers present होती है, इसको basement membrane कहते हैं। Okay बेटे, यहाँ तक clear है सभी students को? Yes, students, speak up. This is clear Yes, to all ma'am. the students. Any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, shall I proceed? Okay, bete. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay, the next slide is of simple epithelial tissues. Okay, bete, simple epithelial tissues we have divided into how many categories? 3 categories. So there are 3 types of simple epithelial tissue. तो अभी मैंने आपको बताया है कि simple epithelial tissues में cells की layer होती है और single layer होती है cells की। ठीक है बेटे, तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को जो है अलग अलग पैटर्न में अरेंज करते हैं। तो देखिए आपको पिक्चर्स में सेल्स जो हैं वो नजर आ रही हैं एंड सभी सेल्स जो हैं उन्होंने अपने आप को अलग अलग तरीके से अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे और किस तरह के वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन वी हैव डिवाइडेड द सिंपल एपिथेलियम इनटू these 3 broad categories. First is squamous epithelium. ठीक है बेटे, देखो squamous epithelium के सेल्स को ध्यान से देखिए। तो squamous epithelium के सेल्स जो हैं वो flattened सेल्स होते हैं, यानी फ्लैट सेल्स होते हैं। और सभी जो फ्लैट सेल्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है, तो कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर उसका पैटर्न नहीं है जिस तरीके से वो अरेंज्ड है। और उन सभी सेल्स की सरफेस कैसी होती है, इरेगुलर सरफेस होती है। तो 2 चीजें हम याद रखेंगे स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में कि एक तो उसमें फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल्स जो है उनकी इरेगुलर सरफेस होती है और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। ठीक है बेटे, अब आपसे पूछा जाता है कि भाई कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स। तो दीज सेल्स आर जनरली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, आपको मालूम है, एंड दीज आर द आर्टरीज, वेन्स और द कैपिलरीज। तो ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की जो वॉल होती है उसके ऊपर जो है ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ ब्लड वेसल्स में ही नहीं, as well as they are also present on the air sacs of your lungs. ठीक है बेटे, एयर सैक वर्ड किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर, तो एयर सैक्स वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है फॉर द एल्वोलाई। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर द प्रोसेस ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको मालूम है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जब बताते हैं आपको फ्लैरेंक्स के बारे में, फिर हम आपको ट्रैकिया के बारे में बताते हैं। तो ये ट्रैकिया जो है ये आगे बाइफरकेट हो जाती है 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। एंड these bronchi when enter into the lungs they form small tube like structures, narrow tube like structures, and these are known as bronchioles.
and the surface of these bronchioles or the tip of these bronchioles is somewhat swollen and balloon like, and these balloon like structures are actually the air sacs or the alveoli. तो alveoli की surface पे ये present होते हैं, ठीक है बेटे। तो अभी मैंने वर्ड यूज किया कि ये एयर सैक्स या alveoli की surface पे present है squamous epithelium, तो इसका मतलब इनका फंक्शन है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्म करने का, ठीक है बेटे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्म करनी है, तो देखो डिफ्यूजन किसका होना है यहाँ पर, तो डिफ्यूजन यहाँ पे होना है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का, बिकॉज यू नो दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द alveolar surface, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहले जो टिश्यूज हैं स्क्वामस एपिथेलियम उसके बारे में बताया आपको, ठीक है। फिर हमारे पास कौन से आ जाते हैं, कुबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज आ जाते हैं। तो कुबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज जो है, ठीक है, उनका मेन फंक्शन यहाँ पे देखिए फोर्थ पिक्चर में हमें कुबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज नजर आ रहे हैं, ट्यूब लाइक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये क्या करते हैं, जितने भी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, उन ग्लैंड्स में या डक्ट्स जो है उनकी लाइनिंग जो है उसको फॉर्म करते हैं जितने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन योर किडनी। अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद आ रहा है तो आपको सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी याद आ रहे होंगे जिनको हमने रीनल ट्यूब्यूल्स का नेम दिया था 10th स्टैंडर्ड में, एंड दीज रीनल ट्यूब्यूल्स आर पीसीटी। अगर आपको याद है पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देन वी हैव डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड, देन वी हैव हैनलीज लूप, ठीक है। तो इन सभी में जो है कुबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जो इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा कहता है कि अगर ये रीनल ट्यूब्यूल्स के सरफेस पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब इनका फंक्शन यहाँ पे या तो सिक्रीशन का होगा या फिर एब्जॉर्प्शन का होगा, ठीक है बेटे। अगर आपको याद है तो रीनल ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस को सिक्रेट करते हैं ताकि हमारा जो रीनल फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेटेड बन सके, और उसी तरीके से सिक्रीशन के अलावा क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का। तो इसलिए कुबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज जो हैं वो रीनल ट्यूब्यूल्स यानी किडनी की जो नेफ्रॉन्स होती हैं उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ओके बेटे। तो थर्ड टाइप इज कोलमनर एपिथेलियम। देखो नेम से ही पता लग रहा है कैसे सेल्स हैं इसके अंदर, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स हैं, कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सभी कॉलम लाइक सेल्स की रेगुलर सरफेस होती है, और कहते हैं कि एक और खास बात है इनके न्यूक्लियस को अगर आप ध्यान से देखें तो कॉलम लाइक सेल्स के न्यूक्लियस जो है वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटे। तो बेसल न्यूक्लियस आर देयर and their free surface also have microvilli like structure, ठीक है। microvilli like structure means these villi are associated with the function of absorption here again। तो here ये वाले जो column like ciliated column like cells या epithelial cells जो यहाँ पे present हैं वो आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके बेटे। तो स्टमक में देखो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो कहते हैं कि आपका जो स्टमक है उसकी जो सरफेस है वहां पे जो है ये प्रेजेंट होंगे, और इनका फंक्शन जो है यहाँ पे सिक्रीशन का होगा, ठीक है। अगर आपको याद है कि आपके स्टमक में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो आपके स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनका नेम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीजें सिक्रीट करते हैं, ठीक है। यू आर वेल फेमिलियर विद दिस, नंबर 1 HCl एसिड, नंबर 2 म्यूकस, एंड नंबर 3 पेप्सिन एंजाइम, ऑलराइट बेटे। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है कोलमनर एपिथेलियम सेल्स, और इनका फंक्शन है सिक्रीशन का, ठीक। और उसके अलावा कहता है कि इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड दीज ग्लैंड्स हैव दिस कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट इन देम, ओके बेटा। So this is all with the three categories that comes under simple epithelium. So here in the next slide I am taking the first subcategory of the simple epithelium. ये function मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि when I send you this video then you need not to write it again and you only grasp from here in this slide. All right, I am just reading for you. So this squamous epithelium I have already discussed. It is made up of single thin layer of flat cells, ठीक है बेटे। irregular boundaries हैं इन flat cells की, thin layer वाले हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, और एयर सैक्स जो है alveoli जो है लंग्स के वहां प्रेजेंट है, और इनका मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करने का, ठीक है। तो दोबारा से इसे करने की जरूरत नहीं है हमें, हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू अभी मैंने आपको बताया ट्यूब लाइक सेल से मिलकर बने हुए हैं,
कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स और द tubular parts of the nephrons of the kidney that are known as the renal tubules. Main function is secretion and absorption. So here he has given the example of paroxysmal convoluted tubule. ओके बेटे, PCT पेरोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. अगर आपको याद है तो जो बोमेंस कैप्सूल होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके बाद जो है रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो अराइज होती हैं. तो उसमें आपके पास DCT, PCT एंड हैनलीज लूप आ जाते हैं. तो उसमें फर्स्ट जो है वो पेरोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है, दैट इज हाईली कॉन्वोलेटेड इन नेचर एंड इट इज द नेक ऑफ द बोमेंस कैप्सूल. ऑलराइट बेटे, तो कहते हैं कि यहाँ पे भी माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बिलाई का फंक्शन हमेशा एब्जॉर्प्शन का होता है और आपको पता है कि रीनल ट्यूब्यूल्स ने भी क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है. तो इसलिए यहाँ पे cuboidal epithelial tissues जो है हमारे पास प्रेजेंट. ओके बेटे, सी द डायग्राम अगेन. cuboidal epithelium टिश्यू का देखो कैसे ट्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है और सारे सेल्स बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है, और सेल्स में न्यूक्लियस भी हमें नजर आ रहा है, साइटोप्लाज्म भी, और सारे के सारे सेल्स जो हैं वो एक मेम्ब्रेन पे अरेंज है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन का नेम दिया गया है. दिस इज द TS ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यूज which are simple cuboidal epithelium. So whenever you are doing the practical of these tissues, so slide is somewhat like this. तो माइक्रोस्कोप में आपको ऐसी स्लाइड नजर आएगी, ठीक है. तो so many nucleus and cytoplasm is present in these type of tissues. So this is the diagram. Next is columnar epithelium. I have already told you the function. These are again made up of single layer of tall and slender cells and the nuclei are present at the base. Nucleus इनके base पे present है और free surface पे क्या present है? Microvilli present है. और कहता है कि ये कहाँ present है? तो they are found in the lining of the stomach, that is covering of the stomach and the covering of the intestine. So here in the stomach they are associated with the function of gastric glands and their function is secretion. And also in the intestine, because they are present in the small and the large intestine, and intestine is concerned with absorption of food and water. That's why these tissues, they are performing the function of absorption in case of intestine. Okay bete, so see the diagram of this column like epithelium tissues. देखो tall and slender cells हैं, ठीक है, अगेन इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उस पे सेल्स अरेंज्ड है और सेल्स के न्यूक्लियस देखिए बेस पे प्रेजेंट है. तो इस तरह से जो है ये स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर ये टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटे. लास्ट कैटेगरी देखिए. उसके बाद कहते हैं कि कई बार क्या होता है, कोलमनर और कुबॉइडल सेल्स जो होते हैं उनकी सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें स्पेशल नेम देते हैं. तो हियर दे आर नोन एज द ciliated epithelial tissues. It may be column like ciliated tissues or it may be cuboidal cells. All right. तो हेयर कहते हैं कि अगर सीलिया प्रेजेंट है तो इसमें इसका मतलब है इनका फंक्शन क्या है? मूवमेंट का फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है, इन्होंने कुछ मूव करना है. तो क्या मूव करेंगे ये? ठीक है, दे मूव सम सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी ऑर्गन में से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने हैं उसको इन्होंने मूव करना है, ठीक है. या फिर बॉडी में अगर म्यूकस प्रेजेंट है तो म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो ये यहाँ पे इनका फंक्शन है. तो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? दे आर प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ अवर हॉलो ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल्स क्या है? आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो कहता है कि उनके अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो सिलिएटेड इसीलिए इनको नेम दिया गया. और फिलोपियन ट्यूब्स, सोचिए फिलोपियन ट्यूब्स में से क्या मूव करेगा? देयर इज वन अनदर नेम ऑफ द फिलोपियन ट्यूब. एनी स्टूडेंट नो द नेम? Yes, bete, fallopian tube. Oviduct. Yes, very good, bete. Oviduct is another name of the fallopian tubes. You know that in the female reproductive system, how many oviducts are present? 2 oviducts are present, which are arising from the 2 respective ovaries. तो इन ओविडक्ट में क्या प्रेजेंट होंगे? ओवा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हर मंथ ओवरी जो है 1 ओवा रिलीज करती है. तो ये फिलोपियन ट्यूब्स जो है इस ओवा को आगे मूव कैसे करेंगे? तो इसीलिए इनकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है, ताकि ये ओवा जो है वो फिलोपियन ट्यूब से कहाँ जा सके? यूट्रस की तरफ जा सके और वहां जाके आफ्टर फर्टिलाइजेशन अपने आप को माउंट कर सके. ओके बेटे, ब्रोंकियोल्स जो है उसमें इसने एयर पैसेज जो है उसकी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना है, इसलिए वहां पे प्रेजेंट है. तो देखिए यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देखो कैसे नजर आ रहा है हमें. So many hair-like structures are present over the surface of either this tube-like
और दिस cuboidal cells. ओके बेटे, तो देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है सेकंड पिक्चर में देखिए, आपको ओरिजिनल पिक्चर ली गई है बॉडी में से, तो इस तरह के खूब सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं, और इनका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन जो है वो मूवमेंट का है। ठीक है बेटे, लास्ट कैटेगरी पे हम आ गए हैं, एंड दिस इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर मींस ग्लैंड लाइक एपिथेलियम टिश्यूज, एंड दे मे बी कॉलम लाइक और दे मे बी cuboidal. और फंक्शन इनका क्या हो सकता है, सिक्रीशन का फंक्शन है, क्योंकि ग्लैंड हमेशा क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट करेंगे. ठीक है, तो कहता है कि दो तरह के हैं, ये टू टाइप्स के हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम और इट मे बी मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो यूनिसेलुलर जो है इट इज मेड अप ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स. तो इसके एग्जांपल के अंदर हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है, व्हिच इज नोन एज अवर फूड पाइप. तो उसके अंदर इस तरह के जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट है. एंड मल्टी सेलुलर जो है उसके एग्जांपल में हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं. हमें मालूम है कि हमारे माउथ के अंदर कितने स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, व्हिच आर नोन एज द सब पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल. ठीक है, दैट आई हैव टोल्ड यू इन 10th standard. अगेन आई एम रिपीटिंग, सब maxillary, sublingual and subparotid. These are the 3 types of salivary glands that are present in your mouth. So glandular epithelium, it may be unicellular glandular epithelium or it may be multicellular. Unicellular के example में alimentary canal आ जाएगी और multicellular के example में salivary gland आ जाएंगी. ठीक है बेटे, ग्लैंड्स की अगर हमने बात की है तो हमें पता है कि ग्लैंड्स जो है वो डक्ट होते हैं, बॉडी में प्रेजेंट सर्टेन डक्ट्स होते हैं जो कुछ सिक्रीट करते हैं. क्या क्या सिक्रीट करेंगे, ठीक है, और क्या उनके पास अपना जो भी सिक्रीशन है उसको स्टोर करने के लिए कैविटीज हैं. अगर उनके पास अपनी कैविटीज हैं तो दे आर नोन एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. तो देयर आर सो मेनी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन योर बॉडी व्हिच आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशंस. फॉर एग्जांपल म्यूकस सिक्रीट होता है आपकी बॉडी में, स्लाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है बेटे, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है. पर कहते हैं कि जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं है उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, देयर सिक्रीशंस आर नोन एज हार्मोन्स, एंड दीस ग्लैंड्स दे बिकॉज दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, तो ये हार्मोन्स जो है इसको डायरेक्टली किसमें डाल देते हैं, ब्लड में, और ब्लड के जरिए जो है वो अपने रिस्पेक्टिव टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं. ठीक है, तो ग्लैंड्स हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनके डक्ट है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनके डक्ट नहीं. ओके बेटे, दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, अगर Yes, सभी yes. बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं तो अप टू पेज नंबर 102 एंड पैराग्राफ नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है कल, कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है बेटे, हम अब कंपाउंड एपिथेलियम